वेलकम टू द टुडेज लेक्चर। कल जो हमने एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ी थी जिसको हमने कहा था एक्रोमैटिक प्रिज्म, वहां पर जो हम दो प्रिज्म्स को कंबाइन करते थे, ऐसे कंबाइन करते थे जो इमर्जेंट लाइट थी वो डिविएटेड थी विदाउट सफरिंग एनी डिस्पर्शन। आज हम दूसरी कॉम्बिनेशन पे जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। आज जो हमारी लाइट है, इस लाइट को डिस्पर्शन हो जाएगा, लेकिन इस लाइट की डिविएशन लास्ट पे नहीं हो जाएगी। इसको कहेंगे हम डायरेक्ट विजन प्रिज्म। क्या कहेंगे? डायरेक्ट विजन प्रिज्म। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ प्रिज्म कॉम्बिनेशन which produces dispersion without deviation. Let us today discuss this. Suppose यहां पर हमारे पास एक प्रिज्म है. Suppose this prism, it is made of Crown glass. ये Crown glass prism है. This is a Crown glass prism. Suppose its angle of prism is A. Suppose हम दूसरा प्रिज्म लेंगे, उसको हम इसके अपोजिट रखेंगे, यानी जो दूसरा प्रिज्म है उसकी बेस और इसकी बेस जो है दे आर अपोजिट टू ईच अदर. Suppose this prism is made of flint glass. It is made of what glass? Flint glass. Suppose its angle of prism is A dash. Suppose यहां से हमारा एक beam of light आया. This is an incident beam. This is a white light, beam of white light. अगर मेरे पास प्रिज्म्स नहीं होंगे तो जो ये रे ऑफ लाइट मेरी है, this will travel straight without getting deviated. This is the original direction of white ray of light, incident light. Original direction of incident light. Now, चूंकि यहां पर मेरे पास प्रिज्म है, क्राउन ग्लास प्रिज्म, ये इस व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करेगा. जो सबसे ज्यादा जिसका डिविएशन ये होगा वो होगी हमारी वायलेट लाइट. यहां पर ये प्रिज्म डिविएट करेगा लाइट को. दिस इज वायलेट लाइट, इट गेट्स मोर डिविएटेड. यहां पर हमारा ये रेड लाइट होगी, दिस विल गेट लीस्ट डिविएटेड. यहां पर हमारी वायलेट लाइट होगी, येलो लाइट होगी, जिसको हम कहते हैं मीन लाइट. ये येलो लाइट है, ये रेड लाइट है. नाउ होता क्या है, जब ये डिस्पर्स्ड लाइट दूसरे प्रिज्म में जाएगी, व्हाट हैपन्स, ये व्हाइट लाइट ज्यादा डिविएट हो जाएगी, यहां से रेड लाइट कम डिविएट हो जाएगी, और जो मीन लाइट है, ये जो मीन लाइट है, आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, द पाथ ऑफ दिस मीन लाइट इट विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट. तो हम कहेंगे कि सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन in which the mean path of the dispersed light, mean path of what light? Dispersed light, mean path of dispersed light is parallel to the incident light. Such type of prism combination is called direct vision prism. हम ऐसे कहेंगे, a direct vision prism is a combination of two prisms made of different materials placed opposite to each other, such that this combination produces dispersion, because जो हमारी लाइट है, इमर्जिंग लाइट है, वो सेपरेटली आई, वायलेट अलग आई, रेड अलग आई, येलो अलग आई, such that the combination produces dispersion without deviation. In such combination, the mean path of the dispersed light, or we can say mean light, the path of the mean light, that comes parallel to the incident light. Hence we can say that light doesn't suffer any kind of deviation. However, the light suffers dispersion. The light can be deviated by prism number first. It can be deviated by the prism number second. But the combination of prisms doesn't deviate the light. That means the mean path of the dispersed light will run parallel to what light? Incident light. Such type of prism combination is called direct vision prism. ठीक है? Now let us derive the condition for non-deviation. Condition for no deviation. Let us derive the condition for no deviation. जैसे हमने वहां पर कंडीशन डिराइव की थी, कंडीशन फॉर
नो डिस्पर्शन। यहां पर हम डिराइव करेंगे कंडीशन फॉर व्हाट? कंडीशन फॉर नो डेविएशन। कैसे चलेंगे हम? लेट अस कंसिडर टू प्रिज्म्स। वन इज मेड ऑफ क्राउन ग्लास having angle of prism A, another is made of what? Another is made of flint glass having angle of prism A dash. These two prisms are placed opposite to each other. Let mu V, mu and mu R, they are the refractive indices. They are the refractive indices of the material of crown glass, prism for yellow light, for violet light, mean light and red light. यहां पर मैंने क्या काम किया? जो क्राउन ग्लास प्रिज्म है, इसका जो मटेरियल है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट लाइट है, वो मैंने म्यू वी लिया, फॉर मीन लाइट वो मैंने म्यू लिया, फॉर रेड लाइट वो मैंने म्यू आर लिया। इसी तरह म्यू डैश वी, म्यू डैश एंड म्यू डैश आर, वो क्या है? They are the refractive indices of the material of flint glass prism for violet light, mean light and red light. ठीक है? Suppose delta, what is delta? Delta जो है, this is the deviation suffered by mean light while passing through crown glass prism. What is this? Delta जो है, this is the deviation suffered by the yellow light, I can say mean light, while passing through what prism? Crown glass prism. तो आपको पता है delta will be equal to mu minus 1 into A. Let us call this equation number first. Mu minus 1 into A. Let us call this equation number first. क्योंकि this is deviation supported by mean light. Mu is the refractive index of the mean light. ठीक है ना? Refractive index of crown glass for mean light. इसी तरह मैं लिखूंगा, suppose delta dash जो है, this is the deviation suffered by mean light on passing through flint glass prism. जो आपका डेल्टा डैश है, this is the deviation suffered by this yellow light, while passing through what glass prism? Flint glass prism. Therefore delta dash is equal to mu dash minus 1 into A dash. Let us call this equation number first. Now, since the combination of these two prisms, the combination doesn't produce any kind of deviation, therefore delta plus delta dash will be equal to 0. Delta जो है, this is the deviation suffered by the yellow light, mean light, while passing through prism, crown glass prism. डेल्टा डैश जो है, वो इसी येलो लाइट की डिविएशन होगी जब वो पास होगी थ्रू फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। क्योंकि अगर जब हमने इनको कंबाइन किया, फाइनल लाइट जो इमर्जिंग लाइट है, दैट कम आउट विदाउट डिविएशन। देयरफॉर दिस डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉम्बिनेशन डजंट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ डिविएशन। देयरफॉर डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इज इक्वल टू 0। Since the combination doesn't produce any kind of deviation, therefore delta plus delta dash is equal to 0. Let us put the value of delta and delta dash in this equation. Delta के बदले क्या लिखेंगे बेटा हम? Mu minus 1 into A plus delta dash के बदले क्या लिखेंगे हम? शाबाश, delta dash के बदले लिखेंगे हम mu dash minus 1 into A dash. This will become equal to 0. क्योंकि जो नेट डिविएशन है, नेट डिविएशन 0 है। ये प्रिज्म भी डिविएट करेगा लाइट को, वो भी लाइट को डिविएट करेगा, मगर इनकी कॉम्बिनेशन जो है, जो नेट डिविएशन है वो 0। इसलिए मैंने लिखा डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इज इक्वल टू 0। डेल्टा जो है दैट्स इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए, डेल्टा डैश जो है दैट्स इक्वल टू म्यू डैश माइनस 1 इनटू ए डैश इज इक्वल टू 0। म्यू माइनस ए जो है इसको उस साइड में लेंगे, तो व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट म्यू डैश
-1 into a dash is equal to minus times mu minus 1 into a. ठीक है, इस a को a dash के नीचे लिखेंगे, ये बनेगा a dash divided by a is equal to minus times mu minus 1 divided by mu dash minus 1. Let us call this equation number 3rd. ये जो इक्वेशन है, this equation represents the condition for no deviation. This equation represents the condition for no deviation. This is very important relation from the this NEET point of view. So many times questions are asked from this expression. क्या होता है, आपके पास दो प्रिज्म्स दिए गए होते हैं, दोनों प्रिज्म्स के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिए गए होते हैं, एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया गया होगा, तो आपको दूसरे प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना होता है. यू आर गिविंग टू प्रिज्म्स, दोनों प्रिज्म्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया होगा और कंडीशन भी दी गई होगी, दे आर प्रोड्यूसिंग डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. तो आपको उस सूरत में एक प्रिज्म का एंगल निकालना होता है. यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन. नाउ तो नेट डेविएशन जो है वो 0 है, सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द कंडीशन फॉर नो डेविएशन. जो इसमें नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शोज दैट दीज टू प्रिज्म्स दे शुड बी प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर. Negative sign shows that these two prisms they should be placed opposite to each other. अब हम निकालेंगे नेट डिस्पर्शन, उसके लिए कंडीशन निकालेंगे. नेट डिस्पर्शन, नेट डिस्पर्शन, नेट डिस्पर्शन, नेट डिस्पर्शन. देखो बेटा, एंगुलर डिस्पर्शन suffered by light on passing through crown glass prism, CGP, crown glass prism में नाम रखूंगा CGP, crown glass prism. सपोज जो ये क्राउन ग्लास प्रिज्म है, जो ये व्हाइट लाइट की डिविएशन प्रोड्यूस करेगा उसको हम डेल्टा बी से डिनोट करेंगे, जो रेड लाइट की डिविएशन करेगा उसको हम करेंगे डिनोट डेल्टा आर से. आपको पता है जो वायलेट कलर और रेड कलर है, दे आर द एंड कलर्स इन द स्पेक्ट्रम एंड द डिफरेंस इन द डिविएशंस ऑफ दीज एंड कलर्स दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन. लिहाजा एंगुलर डिस्पर्शन सफर्ड बाय द लाइट ऑन पासिंग थ्रू द क्राउन ग्लास प्रिज्म, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इसका वैल्यू देंगे. डेल्टा वी जो है दैट विल बी इक्वल टू म्यू वी माइनस 1. तो इसका जब हम वैल्यू देंगे, इसका वैल्यू होगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, इसका वैल्यू होगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए. जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ऐसे निकलेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. व्हाट इज दिस? दिस इज द एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय द क्राउन ग्लास प्रिज्म. सपोज जो फ्लिंट ग्लास प्रिज्म है, जो इसने वायलेट लाइट की डिविएशन प्रोड्यूस की, उसको मैं डिनोट करूंगा किससे? डेल्टा डैश वी से. रेड लाइट को किससे कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा डैश आर से. तो इसका एंगुलर डिस्पर्शन किसके बराबर होगा? दैट विल बी डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश. सिमिलरली एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, FGP फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, वो किसके बराबर बेटा होगा? वो होगा डेल्टा डैश वी माइनस डेल्टा डैश आर. दिस इज डेल्टा डैश वी माइनस डेल्टा डैश आर. दिस इज द एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय क्राउन ग्लास प्रिज्म एंड दिस इज द एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय फ्लिंट ग्लास प्रिज्म. जो नेट डिस्पर्शन होगा, नेट डिस्पर्शन होगा एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय क्राउन ग्लास प्रिज्म प्लस एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय फ्लिंट ग्लास प्रिज्म. ठीक है, देयरफॉर नेट डिस्पर्शन जो होगा वो होगा एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय क्या है? क्राउन ग्लास प्रिज्म प्लस एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय फ्लिंट ग्लास प्रिज्म. तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस शाबाश म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश.
चूंकि ये है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर दैट इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो ये है डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर एंड दिस इज इक्वल टू म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश। ठीक है, अब हम आगे कैसे जाएंगे? आगे हम क्या करेंगे? आगे हम काम करेंगे इस इक्वेशन में जो a है, लेट अस टेक दिस कॉमन, a को हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो आपका नेट डिस्पर्शन जो होगा, नेट डिस्पर्शन, ये क्या बनेगा आपका? a यहां से कॉमन निकालो, a मैंने कॉमन लिया, दिस इज म्यू v माइनस म्यू r, ठीक है, प्लस म्यू डैश v माइनस म्यू डैश r इनटू अपना a डैश है, डिवाइड हो जाएगा इसको a। ठीक है, ठीक है बेटा, a को कॉमन लिया, आपको निकला म्यू v माइनस म्यू r प्लस म्यू डैश v माइनस म्यू r डैश, और जो a है वो इस a डैश को डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी जिसमें हमारा ये था, क्या था? a dash divided by a is equal to minus times mu minus 1 divided by mu dash minus 1। इसका वैल्यू हम a dash by a का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। Let us put the value of a dash by a। जब हम a dash by a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा ये नेट डिस्पर्शन ऐसे बनेगा, a इंटू म्यू v माइनस म्यू r। देखो यहां पर आपका माइनस है ना, माइनस, यहां पर आपका प्लस है, प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस, ये बनेगा म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इनटू उसका वैल्यू दे दो, ये बनेगा म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय, शाबाश, म्यू डैश माइनस 1। ये देखो बेटा ऐसे बनेगा, a डैश बाय a का वैल्यू दिया, ये बनेगा माइनस म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1। इस इक्वेशन में म्यू डैश 1 कॉमन लेंगे, कॉमन निकालो म्यू डैश 1 को, ये बनेगा a इंटू म्यू डैश माइनस 1, इसको मैंने कॉमन लिया, ये ऐसे बनेगा, क्योंकि पहले टर्म में म्यू डैश माइनस 1 नहीं है तो इसको डिवाइड हो जाएगा, दिस इज म्यू v माइनस म्यू r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 माइनस टाइम्स म्यू डैश v माइनस म्यू डैश r डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1। ठीक है, नाउ यहां पर देखो, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा मैं, दिस म्यू माइनस 1 इंटू ए, दिस इज द डिविएशन सफर्ड बाय मीन लाइट, तो इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। a इंटू म्यू माइनस 1 इज द डिविएशन सफर्ड बाय व्हाट लाइट? व्हाट लाइट? मीन लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू व्हाट प्रिज्म? क्राउन गिलास प्रिज्म। अब जो ये है म्यू v माइनस म्यू r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1, दिस इज द डिस्पर्सिव पावर फॉर व्हाट प्रिज्म? क्राउन गिलास प्रिज्म। उसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, और इसका जो डिस्पर्सिव पावर है उसको ओमेगा डैश से डिनोट करेंगे। दिस इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, दिस इज डेल्टा into omega minus omega dash. This is the expression for net dispersion produced by a direct vision prism. This is the expression produced by what? Produced by, this is the expression for net dispersion produced by direct vision prism. अब यहां थोड़ा सा डिस्कस करना है। यहां पर जो क्या होगा, हमारा जो हमारा ओमेगा डैश है, यानी dispersive power of flint glass prism, that is always greater than dispersive power of crown glass prism. Dispersive power of flint glass prism जो होता है, that is greater than dispersive power of what glass? Crown glass prism. तो इसका मतलब है ओमेगा जो होगा that will be less than omega dash. उसका मतलब है ओमेगा माइनस ओमेगा डैश जो होगा that will be negative. उसका मतलब जो होगा, जो डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश होगा दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी व्हाट? नेगेटिव। ये क्यों नेगेटिव होगा बेटा? क्योंकि ओमेगा माइनस ओमेगा डैश नेगेटिव है। इसका मतलब है जो कॉम्बिनेशन डिस्पर्शन प्रोड्यूस करेगा, जो कॉम्बिनेशन डिस्पर्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, डिस्पर्शन विल बी अपोजिट टू द डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय द क्राउन गिलास। That dispersion to the dispersion produced by what glass? Crown glass. ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव निकला, इसका मतलब है जो डिस्पर्शन किसने बनाया?
जिस डिस्पर्शन किसने बनाया, नेगेटिव साइन जो है वो दिखाता है बेटा, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है जो डिस्पर्शन किसने प्रोड्यूस किया, कॉम्बिनेशन ने प्रोड्यूस किया, दैट विल बी अपोजिट टू द डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय क्राउन ग्लास। समझे ना? अब हम एक और कंडीशन पढ़ेंगे। हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आई थी, म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसमें मुझे ऐसे कंडीशन आई थी, ए डैश डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1। चूंकि म्यू डैश माइनस 1 जो है दैट इज ग्रेटर देन म्यू माइनस 1। ठीक है, म्यू डैश माइनस 1 जो है दैट इज ग्रेटर देन म्यू माइनस 1। इसका मतलब जो है म्यू माइनस 1 जो है दैट इज लेस देन म्यू डैश माइनस 1। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1 इज लेस देन 1। चूंकि इसको इसके डिनोमिनेटर में के नीचे लिखेंगे, यहां तो 1 आएगा, मगर म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1 जो है दैट इज ए डैश डिवाइडेड बाय ए। दिस एम्प्लाइज a dash divided by a is less than 1. This implies a dash is less than a. ये किसकी कंडीशन है? नो डिविएशन। ये किसकी कंडीशन है? नो डिविएशन। इसका मतलब है जो ये कॉम्बिनेशन है ये नो डिविएशन तब प्रोड्यूस करेगा जब आपका जो फ्लिंट गिलास प्रिज्म होगा उसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्राउन गिलास के एंगल ऑफ प्रिज्म से कम होगा। The combination will produce no deviation, or the combination will produce dispersion without deviation only when the angle of prism of flint glass, that is the second prism, is less than the angle of prism of the first glass prism, that is crown glass prism. This completes this question.